UP is an agriculture state, and the production of food grains and the land is very fertile. So there is a lot of agriculture residue which is generated, more than around 95 million metric tons per annum. सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी एनर्जी में, हम पेट्रोल पे डिपेंड हैं, डीजल पे डिपेंड हैं। ये हमारे यहाँ कम पैदा होता है, कम निकलता है, तो हम दूसरे मुल्कों से इसको मंगाते हैं। तो हमें लगता है कि हम क्यों नहीं इस काम को करें जिससे हमारी जो देश की ज़रूरत है ये भी पूर्ति होती है। इसलिए हमने फिर ये काम करने का पूरा मन बनाया। नया था टेक्नोलॉजी, प्यूरिफिकेशन, उसको सीएनजी कैसे कन्वर्ट करें, उससे सीएनजी कैसे एक्सट्रैक्ट करें और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ उसका किस तरीके से हो सकता है। The challenges that will remain will be to make it viable for commercial use. Perhaps, this thing is going to be the fuel of the future. If we consider UP state and versus all other India in the field of CBG, my feeling and my understanding is that UP is the only state which stands far ahead of all other states in the country. This belt of the western UP is called is sugar bowl. The sugar bowl basically, like we said to sugar bowl कि यहाँ पर हमारे शुगर फैक्ट्री बहुत है। हर डिस्ट्रिक्ट में 7-8 शुगर फैक्ट्री हैं। द वेरी रिच अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रेस मड। This is the emerging technology to produce biogas from the press mud. तो सबसे बड़ी बात पोटेंशियलिटी जितनी भी है आपकी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बिजनौर, दिस इज द शुगर बाउल। यूपी वेस्ट बहुत अच्छा सोर्स है, स्टेट है कि आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है और एक बहुत अच्छे टाइम तक के लिए अवेलेबल है। ये नहीं कि कुछ समय मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। मेनवाइल अक्टूबर 15, 2022 में यूपी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी अनाउंस की, जो सबसे अच्छी स्टेट पॉलिसी है अभी तक आउट ऑफ इंडियन स्टेट्स, और जिसमें जो मेजर चैलेंजेस हर्डल्स थे इस प्रोजेक्ट को लेकर वो यूपी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सॉल्व करने की कोशिश करी। So we came up with the 2022 policy with keeping in mind what are the problems which developers have faced earlier. So land was a big issue for the developers, which we have tried to resolve in this policy. Secondly, supply chain was a big issue for the developers, which we have tried to resolve in this policy. One more thing is that feasibility of the plants. So feasibility of the plants was an issue which we tried to resolve through providing capex subsidies to the developers. And apart from that, a lot of other incentives which are there in the policy, which is going a long way in promoting the CBG sector in this state. Well, if you look at the number of plants who have been already allotted the land, either it is they have purchased their own private land or the government has allotted the land to them, it amounts to more than 100 projects. To be specific, around 150 to 160 projects with an investment of around 5,800 crores. We hope that in the coming times, we have a target of establishing one bioenergy project in each tehsil. So we hope to achieve that. Government has planned to increase the farmers' income, and this is in line with that because agriculture residue will also have a value, and which the CBG players will purchase, and it will help in the production of compressed biogas. टू 2020 में हमने प्लान किया कि नहीं हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में जब हमें पहली चीज़ नज़र आई, दिखाई दी, तो उसमें सीएनजी गैस का प्रोडक्शन था। प्रोजेक्ट है बुलंद बायोगैस, 3 टन पर डे का प्रोडक्शन है, 7000 मीटर क्यूब इसको टेक्निकली हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्शन है। इसके अंदर हमें 70 टन पर डे फीड स्टॉक डालना है, रॉ मटेरियल डालना है,
इनिशियली 70 टन हम पर डे जो है गोबर डाल रहे हैं, 3 टन गैस हमें डेली मिलनी है। Plant capacity of the CBG is 10.2 ton per day, and we use press mud is to 100 ton per day and produce biogas. एक यार्ड की कैपेसिटी 6,500 मैट्रिक टन है, तो हमको अपने प्लांट के लिए पूरे साल भर का प्रेस मड स्टोरेज करके रखना पड़ता है, वो कि हम ये यार्डों में स्टोरेज कर लेते हैं पूरे साल का। हमारी जो शुगर फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्रियों से हमारे पास प्रेस मड आता है। शुगर फैक्ट्री से प्रेस मड आने के बाद 18 से 20 दिन तक हम उसको स्टोरेज यार्ड में रखते हैं, उसका वीए डेवलप करने के लिए। स्लरी प्रिपरेशन में हम लोग वाटर एंड सिंट्रेट के थ्रू उसको मिक्सअप करते हैं, देन पंप के थ्रू डाइजेस्टर में जाता है। डाइजेस्टर में उसका रिटेंशन टाइम रहता है 18 से 20 डेज एंड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 38 to 40 डिग्री, जिसमें बैक्टीरिया हमारा सर्वाइव कर सके। तो उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसमें प्रोसेस होती है मिथोजेनेसिस, उससे हमारा मीथेन गैस जनरेट होता है। उसके साथ में हमारा CO2 एंड H2S जनरेशन होता है। बायोगैस बैलून में आने के बाद हमारा ये GPS सिस्टम है, गैस प्यूरिफिकेशन सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, H2S सेक्शन है, H2S से हम H2S रिमूव करते हैं। उसके बाद हम CO2 रिमूव करते हैं। CO2 रिमूव करने के बाद हमें 96 to 98% का मीथेन मिलता है। उसको हाई प्रेशर कंप्रेसर के थ्रू कैस्केट्स में फिल करके हम अपने पंप स्टेशन, IOCL से हमारा टाइजअप है, हम अपने पंप स्टेशनों पे भेज देते हैं। सब CBG बनाने के बाद में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको हम वेट सॉलिड मैन्योर बोलते हैं। प्लेटफॉर्म में लाने के बाद में इसको यहाँ पर सन ड्राई मेथड है, जिसको टीलर के द्वारा, रोटरी द्वारा सुखाया जाता है। सबसे पहले हम इसके ऊपर टीलर चलाते हैं, फिर इसके ऊपर रोटरी चलाते हैं। जब इसका मॉइस्चर 30 से 40% रह जाता है, आगे बैगिंग सेक्शन है जहाँ पर हम इसकी बैगिंग करते हैं। 30 किलो का किसान मित्र गोल्ड का जो है हमारा बैग है। बैगिंग करने के बाद में इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ से जहाँ पर जी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे अच्छी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर से निकलेगा बायो ऑर्गेनिक मैन्योर। शुरू में हमने बुलंद बायोगैस पे ये करा है कि 3 साल के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र 100% फ्री कर दिया। चीज़ें ऐसे सैंपल अपने खेतों में लगाइए, इसके रिज़ल्ट्स देखिए और मोटिवेट करिए अदर फार्मर्स को कि इस खाद से खेती करी जाए। तो धरती से निकली चीज़ या धरती पे मिली चीज़ जो कि वेस्ट था, हमने अपने बुलंद बायोगैस अपने इस 3 टन के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करा और वापस धरती को दे दिया। तो हम कोई चीज़ ना तो ख़राब कर रहे ना वेस्ट कर रहे। The disposal is going to be a challenge. Of course, there are ways where you can mitigate them, but it would require a concerted effort and a policy, of course, which has to be brought into so that we see that the farmers are more inclined to take this organic fertilizer rather than relying on the chemical fertilizers like urea. It will require time, it will require some effort, both on the part of the community as well as the government together to join hands to do that. Well, I think there are certain issues which needs to be redressed. One is the pricing of the compressed biogas. If we want this sector to grow, we need to have price parity with CNG, and that too at a national scale. Secondly, we need to strengthen the supply chain, which is obvious, and for that we need more awareness among the farmers. Agriculture department also needs to help us in getting this done. I think the Ministry of Fertilizers can play an important role in the offtake of FOM, so that it will not only promote organic farming among the farmers, but also it will be a win-win situation for the developers as well. देश का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी का हमारे पास साधन होने चाहिए।
एक साधन ये है। तो क्या ये कुछ दिनों महीनों सालों का नहीं, ये कुछ दिनों महीनों सालों का नहीं, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। सीएनजी गैस की रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से अभी 50, 60, 70 साल तो ख़त्म होने नहीं जा रही। जैसा सीएससी की ट्रेनिंग में हमने सीखा, वहाँ में बताया गया कि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है तो ये एक बड़ा अच्छा उसका रॉ मटेरियल है। सीबीजी से हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम सीबीजी का ही देखें तो 30, 40, 50 साल कहीं नहीं गए, और ग्रीन हाइड्रोजन अगर आ गया और जल्दी आ गया जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है तो समझिए 100 साल से कम का प्रोजेक्ट है नहीं। We are translating the waste into something very productive, and that's something which we are giving as circular economy. Nothing is wasted. In fact, the waste is generated into something productive, and then whatever water comes in, that's also is getting recycled. It goes back to the land. ऐसा है, जब आप समाज में रहते हैं तो नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, उन्हीं से सीखना होता है आपको, उन्हीं पर काम करना होता है। वो जो उस वक्त हमने वो गैस का जो प्लांट लगाया, छोटा सा प्लांट था वो जो लगाया था, उससे हमें ये लगा कि ये बहुत शानदार चीज़ है और इसी पे हमारी गवर्नमेंट ने भी काम किया और हम लोगों ने भी, किसानों ने भी जो इसमें दिलचस्पी ली। तो मुझे लगता है कि ये आगे चल के हमारे देश के लिए बहुत काम की चीज़ होगी।